Welcome to Sarsaya Children's Academy, English Literature class of grade 7. It's your lecture number 1 and I'm your teacher, Miss Sabah. Dear students, as you all know that the third wave of COVID is in its full swing and the government has shut down all the educational institutes for our safety. That's why we have started our digital classes again to keep you from any kind of educational loss. Let's start with today's lecture. Dear students, as we have completed the first 3 chapters of your novel, King Solomon's Mines, so we will start chapter number 4, Strangers from the Stars. And in this lecture, we will cover the first part, A Little Magic. Strangers from the Stars. सितारों से आए हुए अजनबी, A Little Magic और थोड़ा सा जादू. The natives stood all around us, threatening us with their spears. It looked as though our end had come. O Lord, ground good. And he put his hand to his mouth and dragged the top set of his false teeth down. Then he let go, and his teeth snapped back to his upper gums, making a surprisingly loud sound. It was a thing he always did when he was worried, but it was a most fortunate move. The group of Kukuanas screamed in horror and ran a few yards away. What's the matter? I said. It's his false teeth, whispered Sir Henry excitedly. He moved them. Take them out, Good. Take them out. Good obeyed, slipping the set of false teeth into the sleeve of his shirt. वहाँ के आबाई लोग जो हमारे इर्द गिर्द खड़े थे और अपने नेज़ा से हमें डरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हमारा वक्त अब करीब आ गया है. ऐसे में गुड कराते हुए गॉड को याद करने लगा और उसने अपने एक हाथ से अपने मुंह से अपने नकली दांत बाहर निकाले और फिर बाहर लाकर उनको एकदम छोड़ दिया, जिससे वो वापस उसके मुंह में जाकर फिक्स हो गए. लेकिन एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी. कैप्टन गुड का ये कदम बहुत ही खुशकिस्मत साबित हुआ क्योंकि इस वक्त कुकुआना कबीले के लोग थोड़ा डर गए और उनसे कुछ फासले पर चले गए. ऐसे में एलन क्वार्टरमैन यानी कि मैंने कहा कि आखिर माजरा क्या है. सर हेनरी ने खुशी से सरगोशी की कि ये इसके नकली दांत हैं और फिर सर हेनरी ने कैप्टन गुड से कहा कि वो अपने दांतों को अपने मुंह से बाहर निकाले और गुड ने ऐसा ही किया और उन्हें अपने शर्ट के बाजों में छुपा दिया. In another second, curiosity had overcome their fear, and the man came slowly forward. It seemed that now they had forgotten that they were going to kill us. और अगले ही सेकंड में कुकुआना कबीले के लोगों का तजस्सुस उनके डर पे भारी पड़ा और एक आदमी आहिस्ता से आगे आया. उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल चुके थे कि वो हमें मारने वाले हैं. The old man pointed to Good, who stood there in nothing but his boots and his shirt and with his face half shaved. उस बूढ़े आदमी ने कैप्टन गुड की तरफ इशारा किया जो कि वहाँ कुछ अजीब हालत में थे. उन्होंने अपने बूट पहन रखे थे और अपनी शर्ट और वो अपना चेहरा लिए वहाँ खड़े थे जिसमें आधी ही शेव बनी हुई थी. How is it, he asked solemnly, that this fat man, whose body is clothed and whose legs are bare, who grows hair on one side of his face and not on the other, and who wears one shining and transparent eye, how is it, I ask, that he has teeth which move by themselves? उस बूढ़े शख्स ने बहुत ही पुख्ता अंदाज में ये पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि ये मोटा आदमी जिसका जिस्म तो ढका हुआ है लेकिन टांगे नहीं, जो कि अपने चेहरे की आधी साइड पर ही बाल उगाता है और जिसने अपनी आँख पर एक चमकता हुआ शीशा पहन रखा है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि उसके दांत अपनी मर्जी से खुद ब खुद यहाँ से वहाँ मूव करते हैं. Open your mouth, I said to Good. He grinned at the old gentleman. All that was showing was a pair of thin red gums, no teeth at all. The audience drew in their breath. Where are his teeth? They shouted. We saw them with our own eyes. और फिर मैंने कैप्टन गुड से कहा कि वो अपना मुंह खोलें और जब मेरे कहने पे कैप्टन गुड ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए अपना मुंह खोला तो उनके मुंह से सिर्फ उनके मसूड़े नज़र आ रहे थे पर उनके दांत नहीं.
ऐसे में उनको देखने वाले कुकुआना कबीले के लोग दंग रह गए और चिल्लाने लगे कि आखिर इसके दांत कहाँ गए, हमने खुद अपनी आंखों से वो दांत देखे हैं। गुड turned his head slowly and swept his hand across his mouth. Then he grinned again, and there were 2 rows of lovely white teeth. और फिर कैप्टन गुड ने अपने सर को घुमाया और आहिस्ता से अपना हाथ अपने मुंह के पास ले गए और फिर दोबारा से मुस्कुराए और वहाँ थे उनके वो चमकते हुए दांत। The young man who had thrown the spear lay down on the grass and screamed in terror. The old gentleman's knees began to knock with fear. इसके बाद वो यंग लड़का जिसने अपना नेज़ा कैप्टन गुड की तरफ उछाला था, चिल्लाते हुए ज़मीन में सजदाबोस हो गया और वो बूढ़ा आदमी डर से कपकपाने लगा। I can see that you are spirits, he said slowly. No man born of woman ever had hair on one side of his face and not on the other, or a round transparent eye, or teeth which moved and went away and grew again. Forgive us, O my Lord. और फिर उस बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा कि मुझे यकीन है कि आप लोग स्पिरिट्स हैं, क्योंकि कोई भी आम शख्स ऐसा नहीं हो सकता जिसके चेहरे के एक साइड पर दाढ़ी मौजूद हो और दूसरे पर नहीं, और उसकी आंख की जगह एक चमकता हुआ शीशा लगा हो, और उसके दांत ऐसे हों जो खुद ब खुद मूव करते हों और फिर गायब हो जाएं और फिर दोबारा से आ भी जाएं। मुझे माफ़ करना मेरे खुदा। I saw that we now had a chance to get ourselves out of our difficulties. You are forgiven, I said. Now you shall know the truth. We come from another world. Although we are men like you, we came from the biggest star that shines at night. अब मुझे लग रहा था कि हमारे पास एक मौका है ख़ुद को इस परेशानी से निकालने का, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम्हें माफ़ किया जाता है, लेकिन अब तुम्हारा ये जान लेना ज़रूरी है कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं। दिखने में तो हम बज़ाहिर इंसान हैं, लेकिन हम उस सबसे बड़े चमकने वाले सितारे से आए हैं जो हर रोज़ रात को आसमान में चमकता है। Oh, groaned the astonished natives. Yes, I went on, we have come to stay with you for a little while and to bless you by our visit. You will see, friends, that I have learned your language. It is so, said the natives, believing completely my huge lie. और फिर वहाँ के आबाई लोग हैरानी से हमें देखने लगे। इस पर मैंने कहा कि हम यहाँ कुछ देर आपके साथ रहने आए हैं और अपने विज़िट से आपको ब्लेस करने आए हैं, और जैसा कि मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपकी ज़बान भी सीख ली है। और फिर वो कहने लगे, जी बिल्कुल, और उन्होंने मेरे इस मुकम्मल झूठ पर भरोसा कर लिया। Now friends, I continued. You might think that after such a long journey we should be angry with the welcome you gave us. Perhaps we should strike dead the youth who threw a spear at the head of him whose teeth come and go. फिर मैंने मज़ीद कहा, दोस्तों अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस लंबे सफ़र के बाद हमें आप पर गुस्सा होना चाहिए कि किस तरह का वेलकम आपने हमें दिया, या फिर हमें इस लड़के को जिसने नेज़ा हमारी तरफ फेंका था उसे मार गिराना चाहिए। Oh, let him live, said the old gentleman. He is the king's son and I am his uncle. If anything happens to him, I shall be in trouble. और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं, इसे जीने दो, ये बादशाह का बेटा है और मैं इसका अंकल, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। I do not want you to doubt our power, I said. I will show you. Here, you slave, I shouted to Ambopa. Give me the magic tube that speaks. That I nodded towards my rifle. Luckily, Ambopa understood what I was doing and with a grin, he handed me my gun. मैं नहीं चाहता कि आप हमारी ताकत पे शक करें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और फिर मैंने गुस्से से अम्बोपा पर चिल्लाया कि ए ग़ुलाम, मुझे वो जादुई ट्यूब दो जो कि बोलती है,
और फिर मैंने अपनी राइफ़ल की तरफ इशारा किया। खुशकिस्मती से अम्बोपा ये समझ चुका था कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए मुझे मेरी गन पकड़ा दी। "It is here, O Lord of Lords," he said, making a deep bow. Now, just before I asked for my gun, I had noticed a small antelope standing on some rocks, about 70 yards away. "Can you see that?" I asked, pointing to the animal. They all looked. "Tell me," I said, "is it possible to kill it from here with a noise?" "It is not possible," answered the old man. और फिर अम्बोपा ने झुककर मुझे वो राइफ़ल पकड़ाई और कहा कि ये मैजिक ट्यूब यहाँ है खुदाओं के खुदा। मैंने अपनी गन के बारे में पूछने से थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस किया था कि एक हिरन कुछ 70 गज़ के फासले पर एक पत्थर के आसपास खड़ा है। फिर मैंने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि क्या तुम उसको देख सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ़ एक आवाज़ से उस हिरन का शिकार कर लूँ? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। I raised the rifle and aimed at the antelope. It was a small animal and quite difficult to hit from that distance. I dared not miss. Bang! Thud! The antelope sprang into the air and fell on a rock. It was dead. फिर मैंने राइफल उठा के उस हिरन पर निशाना लगाया। वो एक छोटा जानवर था और बहुत मुश्किल था कि उसे इस फासले से शिकार किया जाए, लेकिन मैं मिस नहीं कर सकता था। और फिर एक बैंग की आवाज़ के साथ वो हिरन हवा में उछला और फिर एक पत्थर पे जा गिरा और वो मर चुका था। A groan of terror came from the natives. "My eyes have seen enough," said the old gentleman. "These are truly wizards. Let us take them to the king. Listen, children of the shining eye and the movable teeth." और फिर वहाँ के लोग हैरानी से चिल्ला उठे। फिर वो बूढ़ा आदमी बोला कि मेरी आंखें बहुत देख चुकी हैं। तुम वाकई जादूगर हो। आओ मैं तुम्हें बादशाह के पास ले चलूं। चमकती हुई आंख और मूव करने वाले दांत वाले के बच्चों। Who roar out in thunder and kill from far away. I am Infidus, son of Kafa, once king of the Kukwana people. This youth is Skraga, son of Tavala, Tavala the great king, the husband of 1,000 wives, chief of chiefs, lord of lords, king of all the Kukwanas, keeper of the great road, terror of his enemies, leader of 100,000 soldiers, Tavala, the one-eyed Tavala, the black Tavala, the terrible. जो दूर से शिकार करता है, मैं इनफदूस हूँ, काफ़ा का बेटा, जो कि कुकवाना का बादशाह रह चुका है, और ये जवान लड़का स्क्रागा तवाला का बेटा है। तवाला जो एक अजीम बादशाह है, जो हज़ारों बीवियों का शौहर है, जो खुदाओं का खुदा है, जो सारे कुकवानास का बादशाह है, जो कि इस ग्रेट रोड का कीपर है, जो कि दुश्मनों के दिलों का खौफ है, जो कि हज़ारों सोल्जर्स का अकेला लीडर है। तवाला जिसकी एक आंख है, तवाला जो काला है, तवाला जो ख़तरनाक है। So I said proudly, "Then lead us to Tavala. We do not talk with low people." "It is a long way, my lords," said Infidus. "We have come 3 days' journey from the place of the king. We are ready." I said, "Lead on." फिर मैंने फ़ख्र से कहा, तो फिर हमें तवाला के पास ले चलो, क्योंकि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। ये एक लंबा सफ़र है, इनफदूस ने बताया। हमें 3 दिन लगे वहाँ से यहाँ आने के लिए। तो मैंने जवाब दिया कि हम तैयार हैं, तुम रास्ता दिखाओ। The old man made a deep bow and spoke to his followers. They at once began to pick up all our things except the guns so that they could carry them for us. They even seized Good's clothes, which were beside him. He saw this and tried to take them back, so a loud argument broke out. "Do not touch them, O Lord of transparent eye and the disappearing teeth," said the old man. "Surely your slave can carry them for you, but I want to put them on.
shouted Good. Ambopa translated, No, my lord, answered Infidus. My lord must not cover up his beautiful white legs from the eyes of his servants. I nearly fell down from laughing. Meanwhile, one of the men started off with the clothes. और फिर वो बूढ़ा आदमी अपने फॉलोअर्स से कुछ बात करने लगा और फिर वो एक एक करके हमारी चीज़ें उठाने लगे। हमारी गन्स को छोड़कर उन्होंने सारा सामान उठा लिया था, यहाँ तक कि कैप्टन गुड के कपड़े भी। जब कैप्टन गुड ने ये देखा तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगे कि वो उन कपड़ों को पहनना चाहते हैं। ऐसे में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, आपको ये कपड़े पहनने नहीं चाहिए। आपको अपनी इन सफ़ेद टांगों को अपने मुलाजिमों से छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ये खूबसूरत टांगें नज़र आनी चाहिए। ये सुनकर तो मैं हंसते हंसते गिरने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी वो कपड़े लेकर चलना शुरू हो गया। He's got my trousers, screamed Good angrily. Now, Good, said Sir Henry, you arrived in this country and have appeared to the natives in a certain way. It will never do for you to put on trousers again. From now on, you must live in a shirt, a pair of boots, and an eyeglass. Yes, I said, and with hair on one side of your face and not the other. If you change any of these things, the people will be suspicious. I am very sorry for you, but you must stay as you are. If they find out the truth, our lives will be in great danger. फिर कैप्टन गुड चिल्लाने लगे कि मेरे ट्राउज़र्स उस आदमी के पास हैं और वो काफ़ी गुस्से में थे। फिर सर हेनरी ने कैप्टन गुड से मुखातिब होकर कहा कि अब तुम इस कंट्री में आ चुके हो और इनके सामने एक अलग तरीके से ज़ाहिर हो चुके हो। अब तुम्हें चाहिए कि तुम बिना ट्राउज़र के जीना सीख लो और सिर्फ शर्ट पहना करो, और उस शर्ट के साथ बूट्स और अपने आई ग्लास भी। फिर मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, और अपने चेहरे के एक तरफ बाल उगाएं और दूसरे तरफ नहीं, ताकि आपकी आधी ही दाढ़ी नज़र आए। अगर इसमें से आपने कोई भी चीज़ बदली तो फिर इन लोगों को हम पे शक हो सकता है और हमारी ज़िंदगी ख़तरे में आ सकती है। डू यू रियली थिंक सो? आस्क्ड गुड। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? कैप्टन गुड ने पूछा। आई रियली डू। योर ब्यूटिफुल वाइट लेग्स आर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर पार्टी। बी थैंकफुल दैट इट इज़ वार्म एंड दैट यू हैव गॉट योर बूट्स ऑन। मैंने कहा, यकीनन, मुझे यकीन है कि आपकी ये खूबसूरत टांगें हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त गर्मी है और आपने बूट पहने हुए हैं। Good sighed and said no more, but it took him 2 weeks to get used to his new way of dressing. कैप्टन गुड ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि अब और नहीं। खैर, उनको 2 हफ्ते लगे अपनी इस न्यू ड्रेसिंग में यूज टू होने के लिए। So students, that's all for today. Now, keep watching and keep learning with SSC official YouTube channel. And to do that, please subscribe now and press the bell icon. And I will see you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.